Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. So today I will discuss CCS conduct rules. It is according to 7 CPC Rule 8 to 11. Already previous rules I have discussed. You can find these rules in my playlist. So it is the part 4 of this chapter CCS conduct rules. So now I am going to discuss Rule 8. It is connection with press or other media. So sub rule 1, rule 8 sub rule 1, no government servant shall, except with the previous sanction of the government, own wholly or in part or conduct or participate in the editing or management of any newspaper or other periodical publication other or electronic media. तो ये जो सब रूल 1 में है एक्चुअली without the previous sanction of the government, any government servant should not participate in electronic media, should not edit or management of any newspaper, should not involve in any type of periodical publication. Clear? If the government already has given permission, यदि government permission दिया है प्रॉब्लम नहीं है, मगर we before that we should have informed to the government. Clear? तो गवर्नमेंट हमको एक्चुअली परमिशन दिया है तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई पीरियोडिकल पब्लिकेशन कर सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर एडिटिंग कर सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर को हम मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो बिना परमिशन से नहीं होगा. तो विदाउट परमिशन इफ यू इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज देन डिसिप्लिनरी एक्शन वुड बी इनिशिएटेड against the employee. It means who break up actually this rule. So गवर्नमेंट का परमिशन लेना है. सेकेंड में जो सब रूल 2 है, नथिंग इन सब रूल 1 shall apply in case a government servant in the bona fide discharge of his official duties publishes a book or participates in a public media. Suppose it is the duty of the government employee to participate in public media or regularly publishes a book. Actually the government has given authorization, so through official capacity the government employee involved in these activities. So इस केस में एक्चुअली जो सब रूल 1 इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि हम हमारा ऑफिशियल कैपेसिटी से हम कर रहे हैं, हम मीडिया में पार्टिसिपेट करेंगे और हम रेगुलरली बुक पब्लिश करेंगे जो ऑफिशियल कैपेसिटी से, जो ऑफिशियल ड्यूटी हम कर रहे हैं. तो इसमें ये जो सब रूल 1 है वो लागू नहीं होगा. थर्ड सब रूल है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिशिंग ए बुक और पार्टिसिपेटिंग इन ए पब्लिक मीडिया shall at all times make it clear that the views expressed by him are his own and not that of government. यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और पार्टिसिपेट करता है पब्लिशिंग ए बुक, वहाँ पर उसका जो व्यू होगा वो खुद का व्यू होगा. ओके, द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड इन्वॉल्व इन पब्लिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन्वॉल्व इन पब्लिशिंग ए बुक, but he or she should not express their views on behalf of the government. They can express their own views, वो उनका own views दे सकते हैं, मगर वो गवर्नमेंट के तरफ से कोई व्यू नहीं दे सकते. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो 8(1) है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. यदि कोई रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, कोई रेडियो प्रोग्राम और कोई प्रेस, बेसिकली कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक गवर्नमेंट सर्वेंट पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो उसको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा. तो इसके लिए वो जब परमिशन मांगता है तो 30 डेज के अंदर एक्चुअली गवर्नमेंट से परमिशन आता है कि ये पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं. यदि 30 डेज के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हम इंटीमेट कर दिए गवर्नमेंट को, मगर कुछ इन्फॉर्मेशन हमको 30 डेज के अंदर नहीं मिला, तो बियॉन्ड 30 डेज वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है कि उसको गवर्नमेंट परमिट कर दिया. ठीक है, सो वी मस्ट इंटीमेट टू द गवर्नमेंट एंड within 30 days the government might be giving permission. government दे सकता है whether the government servant participate in public media or in publishing a book or not. Beyond of 30 days automatically is just we think that the government has given permission. तो ये है रूल 8. रूल 9 में चलेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट. नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall in any radio broadcast, telecast through any electronic media
or in any document published in his own name or anonymously, pseudonymously, or in the name of any other person, or in any communication to the press, or in any public utterance, make any statement of fact or opinion. उसके मैं बता रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा नहीं कि मैंने पार्टिसिपेटिंग इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम और एनी टेलीकास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पार्टिसिपेट इन पब्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि पब्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन हीज और हर ओन नेम और एनी अदर नेम और एनी अननोन नेम, मगर वहाँ पर वो ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं देगा जिसमें क्या होगा ना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई एक्रिमोनियस और एनिमोसिटी रिलेशन डेवलप होगा, तो उसमें कोई स्टेटमेंट वो नहीं देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन, व्हिच इज द इफेक्ट ऑफ एन एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ एनी करेंट और रिसेंट पॉलिसी और एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आप ऐसा कुछ व्यू नहीं देगा, चाहे एनी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और एनी टेलीकास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पब्लिकेशन ऑफ एनी इन्वॉल्व इन एनी पब्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देगा जो इट मीन्स आप स्टेटमेंट ऐसा दे दिया क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट प्रोग्राम, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एजेंडा, ये नहीं है। आप ये करोगे तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, तो ये राइट नहीं है। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो मगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम और कोई गवर्नमेंट एजेंडा को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, चाहे अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बाय टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और इन सोशल मीडिया ऑल्सो, इन व्हाट्सअप और इन ट्विटर और इन मैसेंजर, इसमें भी आप गवर्नमेंट पॉलिसी एजेंडा की गवर्नमेंट व्यूज को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये करोगे तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो ये कंडक्ट जो रूल है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो उसमें दिया है एक्चुअली जो ग्रीन पार्ट में देखिए, provided that nothing contained in this clause shall apply to bona fide expression of views by government servant as an office bearer of a trade union or association of government servants for the purpose of safeguarding the conditions of service of such government servants or for securing an improvement thereof। तो इसमें जो दिया है आज an office bearer की office bearer of association or any trade union, in this case you give your view in regarding to the it means information of the government, those type of policies of the government are not in favor of the government servant, so in that case you raise the voice as an office bearer। तो एसोसिएशन का आप एक मेंबर हो कि एसोसिएशन का आप एक हेड हो, वहाँ पर आप वॉइस रेज कर सकते हो कि जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट सर्वेंट का फेवर में नहीं है। ठीक है, उस केस में आप आपका वॉइस को रेज कर सकते हो। ठीक है, उसमें ये क्लॉज लागू नहीं होगा, तो आप वॉइस रेज कर सकते हो जहाँ पर कमी मिलेगा। सपोज ऐसा कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है जो इट मीन्स इट इज़ नॉट सेफ गार्ड और इट इज़ नॉट सेफ एंड सिक्योर वन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वहाँ पर आप एसोसिएशन की तरफ से आप वॉइस रेज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, which is capable of embarrassing the relations between central government and government of any state। आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उसमें क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन खराब हो कि थर्ड वन, which is capable of embarrassing the relations between the central government and the government of any foreign state। आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन सोशल नेटवर्क, जिसमें क्या होगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर फॉरेन गवर्नमेंट के बीच में कुछ रिलेशन खराब हो सकता है। तो ये सब है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरऑल है, हम कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। हम कोई गवर्नमेंट एजेंडा, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ओपन मीडिया में, पब्लिक मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। Provided that nothing in this rule shall apply to any statement made or views expressed by government servant in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him। इसमें क्या है, कुछ आज एन ऑफिशियल कैपेसिटी और आज ऑफिशियल ड्यूटी तो हमारे ऊपर असाइन है। हम पब्लिक मीडिया को फेस करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फेस करेंगे, और जो भी अच्छा चीज़ गवर्नमेंट का है उसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इट इज़ आवर ड्यूटी, रेगुलर ड्यूटी। दैट टाइप ऑफ ड्यूटी एक्चुअली असाइंड बाय द गवर्नमेंट। सो आज ऑफिशियल ड्यूटी हम पब्लिक मीडिया में अटेंड कर सकते हैं, और वहाँ पर हमको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, और जो व्यू गवर्नमेंट की तरफ से है
जो व्यू हमको ऑफिशियली तरीके से देना है वहाँ पर हम व्यू दे सकते हैं। ठीक है, ये रूल 9 हो गया। रूल 10, एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी। रूल 1 में नो गवर्नमेंट सर्वेंट शाल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट गिव एविडेंस इन कनेक्शन विथ एनी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन कमिटी और अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 10 का सब रूल 1 में क्या है, बिना गवर्नमेंट प्रीवियस सैंक्शन से, ओके, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। आप कोई इंक्वायरी अटेंड करना चाहते हो तो इसमें क्या है, विदाउट प्रीवियस सैंक्शन इफ यू गिव एनी एविडेंस suppose conducted by any person, committee or authority, just simply it break off the CCS Conduct Rule 1964। ओके, बिना परमिशन से कोई पर्सन, कमिटी और अथॉरिटी यदि इंक्वायरी कंडक्ट करता है और वहाँ पर आप एविडेंस दे दिया तो वो एक्चुअली नियम का विरुद्ध है। जो CCS कंडक्ट रूल का जो रूल को वो एक्चुअली वो अगेंस्ट में है। ठीक है। सेकेंड वन, where any sanction has been accorded under sub rule 1, no government servant giving such evidence shall criticize the policy or any action of the central government or of a state government। यदि आपको परमिशन मिला है कि आप एविडेंस दे सकते हो, गवर्नमेंट से परमिशन मिला है, प्रीवियस सैंक्शन आप सैंक्शन के लिए अप्लाई किया था और गवर्नमेंट परमिशन दिया है, तो उस केस में आपका जो एविडेंस होगा वो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा कि कोई भी ऐसा एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई एक्शन को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एविडेंस में एविडेंस दे सकते हो मगर इसमें कोई एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई एक्शन को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और कोई गवर्नमेंट पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड वन, नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू एविडेंस गिवन एट एन इंक्वायरी बिफोर एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पॉइंट्स। यदि सपोज इट मीन्स एनी टाइप ऑफ इंक्वायरी conducted by the government, parliament or a state legislature, any inquiry conducted by the government, parliament or a state legislature, and suppose the government employee give evidence, okay, in this type of inquiry, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और उसमें आप एविडेंस दे रहे हो तो उस तरीका का एविडेंस आपको मना नहीं किया जा सकता। एविडेंस गिवन इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी, यानी जुडिशियल इंक्वायरी में आप एविडेंस दे रहे हो, वो भी एक्चुअली ये रूल जो है अप्लाई नहीं होगा। एविडेंस गिवन एट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रहा है जो सबऑर्डिनेट ऑफ द गवर्नमेंट, बेसिकली अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, तो ऐसा कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रहा है जिसमें जो अथॉरिटीज है वो सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट है और वो कुछ इंक्वायरी कर रहा है और आपका एविडेंस चाहिए उस केस में, तो ये रूल इसमें लागू नहीं होगा। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है, उसमें ये जो रूल लागू नहीं होगा। तो आप इट मीन्स यू कैन गिव योर एविडेंस, इट मीन्स अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यू कैन गिव एविडेंस इन एनी टाइप ऑफ जुडिशियल इंक्वायरी और ऑल्सो यू कैन गिव एविडेंस एट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट एक हाफ मार्क में दिया है, टेंडरिंग एविडेंस बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। White Rule 10(3), no permission of government or the head of the department is required for this purpose। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में आपको कोई एविडेंस देना है, यहाँ पर परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो इंक्वायरी कर रहा है और आप कुछ एविडेंस दे रहे हो, मगर उसमें आपको ध्यान देना है कि आप कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम की, कोई गवर्नमेंट एक्शन को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और कोई अनऑथराइज कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते। जो ऑथराइज नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन है आप वहां पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो अनऑथराइज्ड है, आपको ऑथराइज नहीं दिया गया है। तो ये है, इसको थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर आल्सो फ्री टू सबमिट मेमोरेंडा ऑफ देयर ओन अकॉर्ड डायरेक्ट टू द कमीशन और एनी सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन देयर टर्म्स ऑफ रेफरेंस, बट ड्यू केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट सच मेमोरेंडा डू नॉट रीच एनी पर्सन और अथॉरिटी अदर देन द कमीशन। यहाँ पर क्या है, सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ मेमोरेंडम देना चाहता है कमीशन को, तो वो डायरेक्टली कमीशन को देगा। तो जो भी आप मेमोरेंडम दे रहे हो वो कोई अदर पर्सन में रीच नहीं करेगा, कोई एनी अदर अथॉरिटी को आप वो एक्चुअली जो आप मेमोरेंडम देना चाहते हो वो एक्चुअली उनके पास वो नहीं पहुंचेगा। तो आपका जो डायरेक्टली मेमोरेंडम डायरेक्टली वो कमीशन को जाएगा। इफ यू वांट टू गिव एनी मेमोरेंडम देन
डायरेक्टली यू सबमिट टू द कमीशन, बट इट शुड नॉट बी रीच्ड टू एनी पर्सन और अथॉरिटी। इसको थोड़ा ध्यान देना है। टेंडरिंग एविडेंस बिफोर द पे कमीशन, पे कमीशन के बिफोर आप भी एविडेंस दे सकते हो। देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट्स सबमिटिंग मेमोरेंडा एटसेट्रा टू द पे कमीशन इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। आप आपका इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से आप मेमोरेंडम दे सकते हो पे कमीशन को, मगर उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। तो वही दिया है, प्रोवाइडेड दैट इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस विल नॉट बी पुट टू द कमीशन। आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मगर जो कॉमन एजेंडा है उसके ऊपर आप मेमोरेंडम दे सकते हो पे कमीशन को। तो आज का वीडियो का लास्ट रूल हम चलेंगे, रूल 11, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। Every government servant shall, in performance of his duties in good faith, communicate information to a person in accordance with the Right to Information Act 2005. It is 22 of 2005 and the rules made thereunder. क्या रूल है देखेंगे। Provided that no government servant shall, except in accordance with any general or specific order of the government or in performance in good faith of the duties assigned to him, communicate directly or indirectly any official document or any part thereof or classified information any government servant or any other person to whom he is not authorized to communicate such document or classified information। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो रूल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, और उसके हिसाब से यदि गवर्नमेंट आपको जनरली और स्पेसिफिक ऑर्डर देता है तब आप कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सीक्रेटली आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो, मगर जो जैसे गवर्नमेंट का जो एडवाइस है उसके हिसाब से हो सकता है। जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से आप उसको सीक्रेटली डिस्क्लोज कर सकते हो, मगर ऑफिशियल कैपेसिटी के हिसाब से जब गवर्नमेंट परमिशन देता है। मगर बिना गवर्नमेंट परमिशन से आप ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो जिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हो उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑथराइजेशन पावर गवर्नमेंट नहीं दिया है, तो वो बहुत सीक्रेट है। तो ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते और कोई अदर गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है। सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और टू बेसिकली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, सो इन दिस केस सम ऑफिशियल इट मीन सीक्रेट यू शुड नॉट शेयर विथ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट और विथ एनी अदर पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना है। तो जब गवर्नमेंट परमिशन देता है उसमें कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफिशियल कैपेसिटी के हिसाब से बहुत सीक्रेटली आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो, मगर वो एक्चुअली उसका जो इट मीन्स दायरा है, जो इट मीन्स लिमिट होता है उसके अंदर होगा, मगर वो गवर्नमेंट परमिशन से होता है एज एन ऑफिसर एक्चुअली ड्यूटी असाइन टू हिम। मगर बिना कोई परमिशन से आप ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते और किसके साथ शेयर नहीं कर सकते। आज इतना ही है, और अदर रूल जो रूल 12 से मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू, आज इतना ही है।